Chapter 1 Resources, Notes and Summary from Class 8, Subject Social Science, Book Resources and Development. Introduction. Anything that satisfies human needs and has utility, usability is called a resource. Examples: water, electricity, textbooks, vehicles, food, clothes. Utility makes an object a resource. A thing becomes a resource only when it has value, worth. Some resources have economic values, metals. Others have non-economic value, beautiful scenery, but both are important. Time and technology convert substances into resources. Example: fire discovery, cooking, wheel invention, transport, hydroelectricity, energy from water. People are the most important resource since their knowledge, ideas and skills create new resources. सोचिए आपके घर में रखी चीजें कैसे कपड़े, किताबें, पानी, बिजली, गाड़ियां, सबका कोई ना कोई उपयोग है। जिस चीज से हमें कोई काम मिलता है या जरूरत पूरी होती है वही कहलाती है संसाधन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स। संसाधन बनने के लिए किसी वस्तु में दो बातें होनी चाहिए। पहला, यूटिलिटी, उपयोगिता, यानी उसका इस्तेमाल हो सके। दूसरा, मूल्य, वैल्यू, यानी उसकी कोई कीमत या महत्व हो। कुछ चीजों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे सोना, पेट्रोल, और कुछ का आर्थिक मूल्य नहीं होता, पर वो हमारे लिए जरूरी होते हैं, जैसे सुंदर प्राकृतिक दृश्य। समय और तकनीक, टाइम एंड टेक्नोलॉजी, किसी साधारण चीज को भी संसाधन बना सकती है। जैसे आग की खोज से खाना पकाना शुरू हुआ, पहिए के आविष्कार से गाड़ियां बनी, और तेज बहते पानी से आज हम बिजली बना रहे हैं। तो असली सबसे बड़ा संसाधन कौन है? मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स। Types of resources. Resources are classified into three categories. First, natural resources. Second, human-made resources. Third, human resources. संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। पहला, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा, मानव निर्मित संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तीसरा, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज drawn from nature and used directly with little or no modification. Examples: air, water, soil, minerals. Many are free gifts to nature. Categories: first, renewable resources, get replenished quickly. Unlimited. Examples: solar, wind. Limited by overuse, water, forest, soil. Careless use can lead to scarcity. Second, non-renewable resources have limited stock, take thousands of years to replenish, longer than human lifespan. Examples: coal, petroleum, natural gas. Distribution of natural resources is unequal due to differences in terrain, climate, altitude and other physical factors. तो दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेज को हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ये वो संसाधन हैं जो हमें सीधे प्रकृति से मिलते हैं और जिन्हें बिना ज्यादा बदले उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण: हवा, पानी, मिट्टी, खनिज। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला, रिन्यूएबल, जो जल्दी जल्दी वापस मिल जाते हैं, जैसे सूर्य की ऊर्जा, हवा, पानी, जंगल। लेकिन अगर हम पानी, मिट्टी या जंगलों का दुरुपयोग करें तो ये भी खत्म हो सकते हैं। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल, जिनका भंडार सीमित है और दोबारा बनने में हजारों साल लगते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह समान नहीं है। ये निर्भर करता है स्थल रूप, टेरेन, जलवायु, क्लाइमेट और ऊंचाई, एल्टीट्यूड पर। नेक्स्ट, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल सब्सटेंसेस मॉडिफाइड बाय ह्यूमंस। एग्जाम्पल: आयरन ओर टू स्टील, to bridges, machines, buildings. Technology itself is a human-made resource. Importance: humans use natural resources to create infrastructure and tools for development. दोस्तों, human-made resources को हम हिंदी में कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। जब मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं को बदलकर उपयोगी बना लेता है तो वे मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण:
लोहे से बनी मशीनें और इमारतें, पुल, सड़कें, वाहन, तकनीक जिसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी, भी एक मानव निर्मित संसाधन है। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्सेज refers to people and their abilities, knowledge, skills, health. Humans are a special resource because they can create and develop new resources. Education and health make people valuable. Improving people's skills to increase resource creation is called human resource development. Example: farmers grow food, scientists innovate farming solutions, humans depend on each other. तो दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्सेज को हम हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन। मनुष्य ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि वही प्रकृति का उपयोग करके नए संसाधन बना सकता है। ज्ञान, शिक्षा और कौशल, कौशल को हम कहते हैं स्किल, मनुष्य को मूल्यवान बनाते हैं। स्वस्थ और शिक्षित व्यक्ति समाज के लिए और भी ज्यादा उपयोगी संसाधन है। जब हम लोगों की क्षमता और शिक्षा को बेहतर बनाते हैं ताकि वे और अधिक संसाधन बना सकें, इसे कहते हैं मानव संसाधन विकास, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट, कंजर्विंग रिसोर्सेज, रिसोर्स कंजर्वेशन, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड अलाउइंग टाइम फॉर देम टू रिन्यू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, using resources to meet present needs without compromising future generations. Balance between use and conservation. Methods: reduce consumption, recycle, reuse. Example: avoid wasting water, electricity and paper. Make eco-friendly products like bags from old newspapers or clothes. दोस्तों, कंजर्विंग रिसोर्सेज को हम हिंदी में कहते हैं संसाधनों का संरक्षण। अगर हम लापरवाह रहें तो पानी, जंगल और कोयले जैसे संसाधन समाप्त हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है संसाधन संरक्षण, संसाधनों का संतुलित और सोच समझकर इस्तेमाल, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी वे बचे रहें। इसे कहते हैं सतत विकास, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम क्या कर सकते हैं? कम से कम इस्तेमाल करना, रिड्यूस, चीजों को दोबारा इस्तेमाल करना, रीयूज, पुरानी चीजों को नया रूप देना, रिसाइकिल, पानी और बिजली की बर्बादी रोकना, पेड़ बचाना और पर्यावरण का ध्यान रखना। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। सेकेंड, इंप्रूव ह्यूमन लाइफ क्वालिटी। थर्ड, कंजर्व अर्थ्स डाइवर्सिटी। फोर्थ, मिनिमाइज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फिफ्थ, change personal habits and attitudes towards the environment. Sixth, enable communities to care for their environment. दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम हिंदी में कहते हैं सतत विकास के सिद्धांत। पहला, सभी जीवन रूपों का सम्मान। दूसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता सुधारना। तीसरा, धरती की विविधता, बायोडायवर्सिटी बचाना। चौथा, संसाधनों की बर्बादी कम करना। पांचवा, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत आदतें बदलना। छठा, स्थानीय समुदाय को अपने पर्यावरण की जिम्मेदारी देना। नेक्स्ट, समरी। रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट फुलफिल ह्यूमन नीड्स एंड हैव यूटिलिटी एंड वैल्यू। रिसोर्सेज आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज में बी रिन्यूएबल, सोलर, विंड, फॉरेस्ट, वाटर, और नॉन रिन्यूएबल, कोल, पेट्रोलियम। Their distribution depends on physical conditions, hence unequal. Human-made resources are developed when humans transform natural resources using knowledge and technology. Human resources are the most important because people's skills, education, and health allow them to create and manage other resources. Conservation of resources is vital to ensure their availability for the future. Sustainable development focuses on careful and responsible use of resources. By reducing consumption, recycling, and reusing, each individual can help conserve resources and secure the earth for future generations. दोस्तों, अब है समरी, अध्याय का सार। संसाधन वो हैं जिससे हमारी जरूरत पूरी हो और जिसमें उपयोगिता और मूल्य हो। संसाधनों के प्रकार: प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। प्राकृतिक संसाधन
रिन्यूएबल जैसे हवा, सूर्य और नॉन रिन्यूएबल जैसे कोयला, पेट्रोलियम। मानव निर्मित संसाधन मनुष्य द्वारा बदले गए रूप जैसे मशीनें, सड़कें, तकनीक। मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि उन्हीं के ज्ञान और कौशल से नए संसाधन बनते हैं। संसाधन संरक्षण और सतत विकास जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे नोट्स चैप्टर 1 रिसोर्सेज के यहाँ समाप्त होते हैं। मैंने कोशिश करा कि आपको इंग्लिश में भी बताऊं और हिंदी में भी समझाऊं कि क्या नोट्स में दिया गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, हाइप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।